علمین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل ترالس مز آز عوامی اتحاد پارٹی طرف پریس کانفرنس سنز کرنا آمت یتھ دوران پارٹی سینئر لیڈر ڈاکٹر ہربخش سنگھن مرکزی سرکارس منگ کر انجینئر رشید سز رہائی حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن لوکن ہندین جذباتن ہز قدر کرنے یی۔ جو انجینئر رشید صاحب ہیں ان کی جو رہائی ہونی تھی اور جو غیر قانونی طریقے سے ان کو بند رکھا گیا ہے تہاڑ جیل میں، اور کل بھی وہ لنگران کیا گیا اور تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے جو ایک ان ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ میری اپیل ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ آپ کو لوگوں کے مینڈیٹ کو مد نظر رکھ کے لوگوں نے جو ایک ووٹ دیا اس ووٹ کو مد نظر رکھ کے آپ کو انجینئر رشید صاحب کو جیل سے چھوڑنا ہوگا، اور جو لوگوں کے ایسپریشن ہے، جس طرح لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے رہنما لیڈر کا، اس کی ایک طرح کا اپیل بھی ہے، اور ہم اپنا غصہ بھی رجسٹر کر رہے ہیں کہ جو ترال کے نوجوانوں میں، جو ترال کے لوگوں میں ان دنوں پھر رہا ہوں ہر جگہ پہ، تو ایک بڑا اس میں لوگوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ انجینئر رشید صاحب جیل سے چھوٹ جانا چاہیے۔ عدالت عالیہ کا ہر فیصلہ مانا جاتا ہے، گورنمنٹ کے فیصلوں کو بھی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ عدالت عالیہ جو فیصلہ کرے گی اچھا کرے گی، لیکن جو یہ ڈیلے ہو رہا ہے یہ ایک کنسپریسی لگ رہی ہے کہ ان کو نہ چھوڑنا ایک کنسپریسی ہے، کیونکہ ان کو ایک جو حریف لوگ ہیں ان کو ایک ڈر ہے کہ اگر انجینئر رشید صاحب باہر آ گئے تو جس طرح سے وہ سونامی پہلے بھی، لیکن انشاءاللہ انجینئر رشید صاحب شیر ہیں، جیل میں رہ کے بھی لوگوں کو ان کے ساتھ ایک ہمدردی ہے، اور وہ لوگوں کے رہنما لیڈر ہیں، 2 بار MLA جو انجینئر رشید صاحب ہیں۔ شپینس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف چناو ریلی ہند ساز کرنا آمت یت مز محمد رفیق شیخ تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ لوکن ون آو تم گھن اسمبلی انتخابن دوران نیشنل کانفرنس پارٹی ہندس حقس مز پن ووٹ دن، تت پارٹی لیڈرو طرف ون آمت شپینس مز نیشنل کانفرنس پارٹی سٹھا مضبوط تو لوک کرن پارٹی امیدوار ہندس حقس مز پن ووٹ۔ گیا ہوں اور اس مندر میں انشاءاللہ جو کمپین چل رہی ہے اس وقت الیکشن کی جو مہم چل رہی ہے زوروں سے چل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے آپ نوجوان دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کیمرہ اس طرف بھی موڑیں گے تو آپ دیکھ لیجیے کتنے نوجوان میرے ساتھ ہیں، کتنے بزرگ عزت شہری میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جوش و خروش سے ہمارے جو یہ الیکشن مہم ہے چل رہی ہے۔ آپ فارمر ہیں، میں بھی بہت سارا کریڈٹ مجھے انشاءاللہ مل رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے، بہت سارے حکمرانوں کو بھی دیکھا ہے، مجھے بھی دیکھا ہے، جو ہم نے کام کیا لوگوں کے لیے وہ یہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پیار محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کہا کیا کیا رفیق صاحب، آج تک میں نے کسی کے زبان سے نہیں سنا۔ یعنی آپ مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں کہ اللہ لوگوں کے خلوص اور محبت سے ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری اکثریت اور بھاری اکثریت سے، کیا پوری اکثریت سے، بھاری اکثریت سے نیشنل کانفرنس انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی جو یہاں مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ JDU پارٹی طرف آز کیری تو دویمن علاقن مز کنونشن ہند ساز کرنا آمت یمن مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ لوکن ون آو تم گھن پارٹی امیدوارن ہندس حقس مز پن ووٹ کریں، تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن چک سان محنت کریں یت زن زیادہ کھت زیادہ لوک پارٹی ست وابستہ سپدن۔ ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری ہوں، میرا نام خورشید احمد ہے، تو میں اس کے لیے سب سے پہلے ان نوجوانوں کا اور شاہین صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ میں تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس عہدے کے لیے چنا ہے، اور اس پارٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم جب سے ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے تو ہم ٹنگمرگ کے ساتھ تھے، تو ابھی ہم واگورہ کریری کانسٹیچوئنسی کے ساتھ گئے ہیں،
तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है कि जिस पार्टी के साथ हमने ज्वाइन किया है ये एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्योंकि इनका सेंटर में भी एक बहुत बड़ा, हम इनके साथ जुड़ रहे हैं ताकि हमारे नौजवान जो है, जो हमारे बाकी बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे घर में बैठे हुए लोग हैं, उनको एक रोजगार मिले। तकरीबन 60-70% लोग टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं कि हम टूरिज्म में एक बढ़ावा देंगे। और यहाँ की जो हम इस इलाके की बात करेंगे कि हमारा ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की फ़र्क है, बहुत सारे वसाइल जो रोज़गार के बढ़ जाएंगे, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। हल्के इंतखाब हवेली पे आज चौधरी मोहम्मद मकसूदन बतौर आज़ाद उम्मीदवार पन कागजात नामजदगी दाखिल करमित, यथ दौरान तिमन हमरा वर्करन हुंद बोड़ तादाद मौजूद यह जन तमो वोन मुकामी लूको तरफ तिमन इंतखाबन मज हिस्स निन बापत वन आमुत तो तिमन वमेद लूक कर तिहंदिस हकस मज पन वोट। चौधरी मकसूदन अत मौके पे वोनमुत हवेली इंतखाब हल्के इंतखाबस मज लूक रंग रंग मुश्किल मज हन आमुत तो योदवे तम कामयाब सपत लूकन मुश्किल दूर करने हवाले संजीदा कदम तुलन। तो मैं आपको कल इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी तो मैनिफेस्टो हमने बनाया नहीं, आप प्रिंट होके आ जाएंगे, फिर आपको बता देंगे शाम तक। तो आज नॉमिनेशन हमने बढ़ाया बतौर आज़ाद उम्मीदवार एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो मेरे घर में हमने अपने लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को मदऊ किया था, वहाँ बैठ के हमारा सलाह मशवरा यही हुआ कि आप बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ें। तो मैं अपने साथियों के कहने पर बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए एक ज़रूरत हो तो मैं बताऊँ, यहाँ अनगिनत ज़रूरतें हैं, एक नहीं है। जिस लाइन पे आप जाएंगे तो वहीं ज़रूरत है, वहीं काम। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आज तक हुआ, कुछ भी हुआ है, पर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। जो हमारी प्लानिंग रही है, मैं यही समझता हूँ कि वो हमारी प्लानिंग जो वो ठीक नहीं हुई है। अगर सही तरीके से प्लानिंग होती तो फिर उसका नक्शा जरूर बदलता। तो हम आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अच्छी प्लानिंग करेंगे, तो लोगों को डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट करेंगे, टूरिज्म में डेवलपमेंट करेंगे, हार्टिकल्चर में करेंगे, एग्रीकल्चर में करेंगे, पोल्ट्री में करेंगे, डिफरेंट किस्म की जहाँ ज़रूरत होगी जिस चीज़ सेक्टर में, उस सेक्टर में इंशाल्लाह डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ डेयरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। हमारे इतनी आबादी होने के बावजूद भी हमारे दूध की पैदावार यहाँ ना होने के बराबर हम इंशाल्लाह हर सेक्टर में काम करेंगे और हर सेक्टर में इंशाल्लाह लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मसला यहाँ की यूथ के एम्प्लॉयमेंट है और वो नौकरियों से हल नहीं हो सकता, वो सेल्फ बिजनेस ही करने से ख़त्म हो सकता है। तो कोशिश करेंगे नौजवानों को उस रास्ते पे लाएँ ताकि और जो नौकरियों की सिलेक्शन हो, मैं ये समझता हूँ कि वो मेरिट बेस पे हो, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, उस पर सिफारिश या पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं। अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ आज शुपियनस मज चुनाव रैली हुंद साज कर आमुत, यथ मज अबरार रशीद तो मुकामी लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे लूकन वन आव तम गन इन वालन असम्बली इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार हंदिस हकस मज पन वोट दिन तक अबरार रशीदन वोनमुत जनूबी मज तेजी सान पार्टी मजबूत सपदन तो तिमन उम्मीद लूक करन पार्टी उम्मीदवार हंदिस हकस मज पन वोट। मंजिल मंजिल सब कहते हैं, मंजिल है कहाँ मालूम नहीं, मंजिल सब कहते हैं, मंजिल है कहाँ मालूम नहीं, साहिल की बात तो सब करते हैं, साहिल है कहाँ मालूम नहीं। हमारे कैंडिडेट यहाँ पे राजा वहीद साहब हैं और इनका चुनाव निशान प्रशनपुर है और हम आज हमारा तीसरा दिन है साउथ कश्मीर में। आज हम कैंपेन कर रहे हैं और इंजीनियर रशीद साहब के ये कैंडिडेट है राजा वहीद साहब और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर के नौजवान ने वहाँ पे एक इनकलाब आया और आज साउथ कश्मीर के लोग भी एक इनकलाब आएंगे इंशाल्लाह। देखिए हमने कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पूरी उम्मीद है कि वो जेल से छूट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक गुनाह किया है कि वो ये किया है कि उन्होंने हमेशा कश्मीर और कश्मीर की बात की है। आज हम निकले हैं कश्मीर को ऑल्टरनेटिव देने के लिए, उनकी बात करने के लिए, उनके दिलों की, उनके जज्बात की, उनके एहसास की तर्जुमानी करने के लिए हम निकले हैं। बिल्कुल अगर उन्होंने भी पीछे पर्दे पीछे किसी एजेंसी के साथ सरकार के साथ हाथ मिलाया होता तो शायद आज इंजीनियर रशीद इलेक्शन जीतने के बाद इतना मैंडेट मिलने के बाद भी आज शायद तिहाड़ जेल में बंद नहीं होता। ये इस बात की गवाही देता है कि आज भी इंजीनियर रशीद आवाम के लिए खड़ा है, कश्मीर और कश्मीर के लिए वहाँ पे खड़ा है और अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी गर्दन झुकाने के लिए तैयार नहीं है।
देखिए ये शायद मेरे वालिद साहब की कुर्बानी और उनकी जो ये खुददारी है उसको शायद आज लोग साथ दे रहे हैं और इसीलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मैं बस एक बासित नौजवान, मैं भी एक आम इंसान हूँ और अपने वालिद की गैर मौजूदगी में अपनी कंपेन चला रहा हूँ। एज वॉलंटियर मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आज हर घर से एक इंजीनियर रशीद निकले और इस कौम का तकदीर बदलने के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी और इंजीनियर रशीद साहब का साथ दे। उमर अब्दुल्लान ये रात गांधरबलस मज गुल गंडित लूकन तिहंदिस हकस मज वोट दिन मांग कर तत भारतीय जनता पार्टी हंद सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंगन वोनमुत उमर अब्दुल्लाहस लूको तरफ लोकसभा इंतखाबन दौरान सबक दिन आमुत तो यह वजह तिम अत हदस पे वतमित, क्योंकि कश्मीरियों ने उन्हें अभी ताज़ा सबक सिखाया है। लाखों की वोट से वो हारे हैं और वो जो दम भरते हैं कि हम 370 लाएंगे, 35A लाएंगे, हम जो है यहाँ के उग्रवादियों को छोड़ेंगे, यासीन मलिक और बेटा कराटे को छोड़ेंगे जिन्होंने यहाँ पर कत्ल किए हैं, इस प्रकार की बात को करने वाले वो कश्मीरी जो आज शांति का सांस ले रहे हैं। कश्मीर की माएँ जो हैं उनके उग्रवादी, उन बेटे उग्रवादी नहीं बन रहे। जो स्कूल जाते हैं तो पत्थर लेके नहीं जाते, वो बस्ता लेके जाते हैं, क्योंकि लोगों के आगे भीख मांग रहे हैं ना। उनको पिछले बार तो नहीं उन्होंने निकाली थी टोपी, लोकसभा में नहीं निकाली थी, अभी उनको मजबूर होना पड़ा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बेटा और खुद मुख्यमंत्री रहा, जब उसको कश्मीर के लोग ही उसका जो है उसकी औकात बता देते हैं, उसको सबक सिखाते हैं, तो यही गिड़गिड़ाना पड़ता है। यही लोकतंत्र का जो है तकाजा है। ये लोग जो अपने शख्सी राज करते थे, सुल्तान बने हुए थे, आज इस तक आ गए और उनको अपना भविष्य दिख रहा है कि किस प्रकार से लोग इनको रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल सता रहे, वही तो डर है ना। नहीं तो आज तक कभी उन्होंने हाथ ऐसे हाथ जोड़े भी कभी नहीं जोड़े उन्होंने। बड़े धड़ल्ले से आते थे और जिस प्रकार से बात करते थे, आज उनको हाथ नहीं टोपी उतारे और अपील कर रहे हैं मेरी तरफ देखो, बेचारा बन के करे, तो ये बताते हैं कि वो कितने कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और उनको पता है जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को क्या आने वाले वक्त में क्या उनकी जो है जगह उसको दिखाएंगे। अनंतनाग में PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सज कर आमुत यथ दौरान डॉक्टर महबूब बैगन उमर अब्दुल्ला सदिस रवियस हवाले कत करान वोन PDP पार्टी हिंद मजबूत सपदन सत वक ये उमर अब्दुल्ला गुल गंडित लूकन वोट मंगान। कल उमर साहब को मुझे जब वो गांधरबल गए थे, उमर साहब उन्होंने वो कैब करके वो कहा मैं भीख मांग रहा हूँ, हैंड फोल्ड कर रहा हूँ, ऐसे गुल गंडित जिसको बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था ये क्या अच्छी तब्दीली है, मतलब मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी तब्दीली है। जहां वो बिल्कुल अपोजिट, कहाँ एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे गए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नेमल बदल की बात कर रहा हूँ, मैं PDP नेमल बदल जो मुफ्ती साहब ने दिए। देखिए ना, आप ही सोच लीजिए इस पे थोड़ी देर के लिए, अगर PDP नहीं होती तो उमर साहब को मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ती कि अपना टेम्परामेंट वो बदल दे, जो उनका ओरिजिनल नेचुरल आपने देखा होगा पब्लिक टेम्परामेंट है, वो बदल नहीं जाता। मैं PDP के बानी मुफ्ती साहब को सलाम करना चाहता हूँ और महबूबा जी को सलाम करना। आप खुद सोचिए, जब ये मोनोपोली थी पॉलिटिक्स में, एक ही घर था, एक ही दुकान जैसे थी आम फहम बात में, एक ही दुकान थी, उसी दुकान से हर चीज लेनी थी, तो वो दुकानदार समझता है मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, लोगों को कुछ भी मुझसे खरीदना है, क्योंकि और कोई दुकान है ही नहीं। तो पॉलिटिक्स में जो ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स नेमल बदल PDP के रूप में आया, मुझे लगता है ये साउथ कश्मीर के लोगों को मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। यानी वो खुद के लिए ह्यूमिलेशन समझते थे, यही तो मैं कहता हूँ एरोगेंस। वन अनंतनाग में आज PDP तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ पार्टी उम्मीदवार सोफी गफार तो दोमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन चुकसान काम करें युत जन पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपदे। जो आज हमने यहाँ तकरीब रखी थी वो हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग रखी थी, और ये एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जो रखी थी वो ये कन्वेंशन में एक जलसे में तब्दील हो गई। ये मुझे दिखाता है कि हमारे कारकुनों में, हमारे मुहिबों में, हमारे दोस्तों में, हमारे वर्करों में कितना जज्बा है PDP के मुतल्लिक और कलम दवा के मुतल्लिक। लिहाजा मेरे लिए हौसला अफजाई की बात है
शफ़क़त की बात है कि आज यहाँ इस तरह का कन्वेंशन हुआ और हमारा संडे को यहाँ जलसा है जिसमें हमारी कायद मोहतरमा महबूबा जी तशरीफ़ ला रहे हैं और मैंने इन सब लोगों को दावत दी है उस जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत करने के लिए, इसीलिए हमने ये मीटिंग यहाँ बुलाई। डोडस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मीटिंग हूं सांस करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तच वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी ज़मीनी सुतरस पे मजीद मजबूत बनाने बाबत काम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी हंदिस हकस मज पनुन वोट करन। डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्रभारी बना के मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, जो जहाँ पे डोडा में 3 विधानसभाएं हैं। मैं लगातार जहाँ प्रवास कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और ख़ासकर लोगों में उत्साह चुनाव के लिए। एक 370 टूटने के बाद पहली बार चुनाव होना असेंबली के और लोग वोट डालने के लिए बड़े उत्साह के साथ आगे आने वाले हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और लोगों में और प्रत्याशियों में भी अच्छी तरह से कैंपेन जहाँ चल रही है। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और ख़ासकर प्रत्याशी लोगों के बीच जाके वोट भी मांग रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं कि कैसे कितना ज़रूरी भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए जीतना जहाँ पे है। एक अच्छी लहर भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे है। कल अमित शाह जी जम्मू में 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं और कल हमारा मैनिफेस्टो जो है वो जहाँ घोषणा करेंगे, बताएंगे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो दिया है कि 370 वापस लाएंगे, हम पुराने दौर में ले जाएंगे, जो जम्मू कश्मीर था, जो बुरे दिन थे उन दिनों में ले जाएंगे। कांग्रेस भी इसकी सपोर्ट कर रही है। मुझे लगता है इसका असर जो है मैं डोडा में देख रहा हूँ। डोडा में कोई इनका अलायंस नहीं है, जहाँ पे कांग्रेस, एनसी और सभी चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं। मेरा सोचना था कि ऊपर नेताओं का अलायंस हुआ है लेकिन ग्राउंड पे नहीं होगा। लेकिन जहाँ तो नेता भी आपस में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो डोडा में तीनों सीटें जो हैं अच्छे दमखम से जीतेंगी, अच्छे मार्जिन से जीतेंगी। आप देख सकते हैं कि जो 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, किस तरह पीछे ले गए हैं। वही को देखते हुए आज जो अमरुल्लाह जी की हालत देखने वाली थी। पार्लियामेंट का चुनाव हार चुके हैं, महबूबा जी हार चुकी हैं और आज उसी हार के डर से जिस तरह उन्होंने टोपी खोल के दिखाई और लोगों से अपील की, मुझे लगता है कि ये डरे हुए हैं। इनको पता है कि इस बार भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। कश्मीर की जनता जो है वो विकास के साथ चलेगी। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी तजरती वक्फ।